Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your own channel, Islamabad for College for Boys G63. And today you are going to study about magnetism. And this is from your general science book. And I'm your teacher, Lubna Batul. And I will assist you regarding this topic. And let's start our work. First we study introduction, means first see what are magnets and what are their properties. They said in this paragraph, in this case, magnets are those objects which attracts some kinds of metals, and due to this property of the magnet we can separate the metallic objects from the non-metallic objects. And one more thing that I would like to tell you is that the metallic objects which are attracted by the magnets, we are also call them as magnetic substances. And one more thing that they explained in this, which you already know, that all magnets have two poles, north and south pole. And beside this, they also tell you that if we break the magnet into two pieces, we will have two distant magnets, and each magnet have north and south pole. And beside that, they also tell you that the opposite poles attract each other and the same poles repel each other. And the power of the magnets, due to which it attracts the magnetic substance towards itself, that power is called magnetism. That power is called, or that force is called magnetism. And the area where that magnetism is felt by magnetic substances, and due to which the magnet attract the magnetic substance towards itself, that is called magnetic field. Let's see practically these things. If you see here, I have three permanent magnets. One is ring, other one is the U-shaped, and the next one is the bar magnet. And all of these are permanent magnets. And let's see the ability of the magnet, the property of the magnet, that magnets are those objects which attract the metallic objects towards itself. आपने देखा कि वो उसने अपने तरफ जो है वो पेपर पिन को अट्रैक्ट कर लिया. Similarly, the second one will do this, the same thing. तो ये भी, इसमें भी यही प्रॉपर्टी है. It means shape doesn't matter. इसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि चाहे उसकी शेप कुछ भी हो, it attract the magnetic substances towards itself. One more thing जो भी हमने पढ़ा था कि magnets have the ability that their opposite poles attract each other and like poles repel each other. Like poles क्या करें, अभी देखें, unlike pole है, एक साउथ है और एक नॉर्थ, they attract each other, while the like pole, एक जैसे पोल, यानी साउथ के साथ और नॉर्थ के साथ, वो रिपेल कर रहा है. देखें, रिपेल कर रहा है ना, उसको दूर कर रहा है, स्टे अवे फ्रॉम मी. तो उस तरह से वो बात कर रहा है कि मुझसे दूर रहो. तो ये जो है रिपल्शन जो होती है इन केस ऑफ सेम पोल्स होती है, नॉर्थ के साथ और साउथ के साथ. एंड नेक्स्ट थिंग जो हमने स्टडी किया था, दैट इज़ अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द एरिया वेयर द मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट इज़ फेल्ट. जहाँ पे मैग्नेटिज्म जो है वो वर्क कर रही होती है, जहाँ पे मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है. सो द एरिया अराउंड द मैग्नेट, ये हर तरफ होगा, हर तरफ, उसके चारों तरफ होगा, ठीक है. तो अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स पुश और पुल कैन बी फेल्ट इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड. उसको हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पे वो पुश और पुल किस केस में होगा और पुश किस केस में होगा. आप देख रहे थे कि अट्रैक्शन जिस केस में है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है. और धक्का किस तरफ होगा, वो उसमें होगा रिपल्शन केस में, कि जहाँ अभी आपने देखा था ना, जहाँ नॉर्थ के साथ था या साउथ के साथ. वन थिंग प्लीज़ बेटा रिकॉल इन योर माइंड दैट द red sign is showing north poles and blue color is used for south pole. So when I used blue color and red color, they attract each other because one is the south pole and another one is the north pole. And similarly in the other case, आपने देखा था in case of like poles, whether they are north and north, whether they are south and south, they repel each other. वो एक दूसरे को जो है वो हटा रहे थे, stay away कर रहे थे, ठीक है.
हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड का तो आपने अभी स्टडी किया है कि द एरिया इन विच द मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट कैन बी फेल्ट बाय मेटेलिक ऑब्जेक्ट, दैट एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमने इसको देखना है कि किस तरह से होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो अरेंजमेंट है वो कैसी होती है। ठीक है, तो they said when a magnet is placed under a sheet of paper or glass and iron fillings sprinkle over it, the fillings line up in a pattern made of curved lines as shown in picture। as ये आप देख रहे हो curved lines हैं इनकी, बिल्कुल सीधी नहीं है, ये गोलाई की तरफ जा रही हैं, कर्व्ड हैं। ठीक है, तो हैवी concentration of iron fillings shows the strong magnetic field at both ends। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एंड्स पे आपको हैवी कंसंट्रेशन नज़र आ रही है कि आयरन फिलिंग्स की तादाद जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है और सेंटर में कम है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पोल्स में ज़्यादा है और जबकि सेंटर में वो वीकर है। इसी तरह जब वो दूर होते जा रहे हैं तो आपको ये भी देख रहे हो कि जो जो मैग्नेट बार से दूर जो जा रहे हैं वहाँ पे भी आपकी इसको इनकी कंसंट्रेशन कम नज़र आ रही है, मींस कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वीकर होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट ग्रेविटी। therefore we can say that the magnetic force of a magnet is just similar to the earth gravitational force, that both are the same। like in case of gravitational force, you learned that their gravitational force is stronger at poles, and similarly the magnetic force is stronger at poles। अब अगर आप नेक्स्ट हम जाएंगे तो नेक्स्ट यू विल सी experiment that is relevant to magnetic field। they perform some experiment and they expect from us that we will also do the same activity so that we can learn it practically, that the magnetic field is in concentric lines। concentric lines का मतलब है ये बेटा कि they are just moving towards one center, एक ही सेंटर की तरफ मूव कर रही होती हैं, यानी कि जो मैग्नेट बार जो सेंटर में है उसी की तरफ वो अराउंड उसी के जो है वो अरेंज होते जाते हैं आयरन फिलिंग्स। so that is why they are called magnetic field are in concentric lines। तो टेक अ बार मैग्नेट, आयरन फिलिंग्स, अ थिन प्लास्टिक शीट एंड अ शीट ऑफ पेपर, वो सब बातें जो भी हमने पढ़ी थी। रैप द बार मैग्नेट विद द प्लास्टिक, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ और साथ साथ आपको समझाती हूँ। यू कैन सी जस्ट जैसे उन्होंने कहा आई टुक अ पेपर एंड देन आई जस्ट मार्क द आउटलाइन ऑफ द माई मैग्नेट एंड राइट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, एंड देन what I'm going to do is I just pick up the magnet, मैं उसको उठा लूँगी और उसके बाद या अभी उसकी एक आउटलाइन बाहर की तरफ बना दूँगी अगले पेज पे, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट पेज पे करना है। क्योंकि बेटे अगर हम नेक्स्ट पेज पे नहीं करेंगे तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि जो आयरन फिलिंग्स होंगे दे विल नॉट स्प्रिंकल और अरेंज देमसेल्फ, दे विल अटैच देयर एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिज्म जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है और आयरन फिलिंग्स बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो वो होता है कि अगर आप उसको डायरेक्ट अगर आप स्प्रिंकल करोगे मैग्नेट के ऊपर तो वो पोल्स में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप अपना जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है टू सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन कॉन्सेंट्रिक लाइन्स, वो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई द एक्टिविटी विल बी डन लाइक कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्टिविटी when we place the magnet under the paper के नीचे उसको place करेंगे, and beside that we also put that magnet inside the प्लास्टिक शीट। हम उसे एक प्लास्टिक शीट में भी रैप करेंगे ताकि हमारे लिए एक बेहतर रिज़ल्ट हम परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए फिर हमने ये किया कि उसको एक प्लास्टिक शीट के अंदर हमने उसको रैप कर दिया, उसके अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसको उसी अरेंजमेंट में जिस अरेंजमेंट में वो था उसमें हमने लगा दिया, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन पे जिसमें हमने लेबल किया था। एंड अगेन वी टर्न ओवर आवर पेपर एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम जब पेज पलटने के बाद हम उसके ऊपर नेक्स्ट हमारा जॉब है टू स्प्रिंकल और टू स्प्रेड आयरन फिलिंग्स ओवर इट। हम उसके ऊपर अब आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि अब हमें ये डर नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो पोल्स पे चले जाएंगे और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, देन यू स्प्रेड द आयरन फिलिंग्स ऑन इट ओवर इट एंड देन यू टैप द पेपर जेंटली। अभी आप देखिएगा मैं आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का पेपर को थपथपाऊंगी। ठीक है, जेंटली आई विल टैप द पेपर एंड इन सच अ वे दैट दे विल अरेंज, वो अरेंज हो जाएं। ठीक है ना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट, और आप देख रहे हो कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट पे जा रहे हैं। ठीक, और इसमें हम जो है
just कि what we have achieved here, आप देखें, you can see the concentric lines of the magnetic field here. आप देख रहे हो कि ये सर्कुलर पाथ में आपको एक कर्व लाइंस में आपको नजर आए जो अभी आपने पिक्चर में देखी थी. द सेम यू कैन सी और यू कैन ऑब्जर्व हेयर इन दिस प्रैक्टिकल. आपने देखा कि बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी अरेंजमेंट हुई है. एंड दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट यू कैन डू बाय योर सेल्फ. आप खुद से भी कर सकते हो. मार्केट से आप आयरन फिलिंग्स ले लें एंड यू परचेज अ आयरन बार एंड यू परफॉर्म्स द वे दैट आई डिड. तो अब बड़े आराम से आपका भी परफॉर्म जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुल होगा. ठीक है बेटा, इस पर आप देखें कि इनकी जो अरेंजमेंट है आपको ये सर्कुलर पाथ में नज़र आ रही है, कर्व लाइन में नज़र आ रही है. तो दैट्स वाई वी एंड दिस इज़ अराउंड द मैग्नेट बार. एक ही सेंटर है, एक ही एक्सिस है उनका. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दे आर अरेंजिंग देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक लाइन्स. बिसाइड दिस मैं इसको दोबारा ऑन करती हूँ क्योंकि मैंने अगला नेक्स्ट ये किया था ये प्रूव करने के लिए कि अभी मैं थोड़ा सा और उसको टैप करूँगी जस्ट टू शो दैट मैग्नेटिक अगर हम ज़्यादा टैप करें तो वो कहाँ जाके गैदर होंगे, कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है. क्योंकि हमने ये भी तो देखना है ना कि कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, इन द सेंटर ऑफ द बार और एट पोल्स. तो आप नोट कर रहे हो यहाँ पे कि गैदरिंग जो है वो पोल्स में ज़्यादा हो रही है और सेंटर में कम होती जा रही है. यही बात है ना. सेंटर पे जो है वो आपको लेस कंसंट्रेशन नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू द poles. So it means it shows that the magnetic force is more at poles as compared to the center, and magnetic field is in concentric lines. The and moreover that आपने देखा था यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट थी जो मैंने अरेंज करते हुए आपको दिखाई थी. तो वहाँ पे आपको अरेंजमेंट जो है आयरन फिलिंग्स की कम नज़र आ रही है. मींस यहाँ पे वीकर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पे पावर जो मैग्नेट की है वो कम है ड्यू टू प्लास्टिक शीट. और यहाँ क्योंकि वो प्लास्टिक शीट नहीं थी तो यहाँ आपको स्ट्रॉन्गर आयरन जो मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रहा है. यानी यहाँ पे मैग्नेट का जो पावर है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है ना. तो द एरिया वेयर दिस मैग्नेटिक field can be felt by iron fillings or other metallic objects that these are called. ये अभी आप अगेन देख रहे हो कि पोल्स में ये गैदर हो गए हैं. तो इट मीन्स कि पोल्स पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है और जो है मैग्नेटिक फील्ड इज़ आल्सो इन कॉन्सेंट्रिक लाइंस. होप सो बेटा कि आपको ये जो है बात या कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं. अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो अभी यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. रैप द बार मैग्नेट, रैप मतलब लपेटना, प्लास्टिक शीट टू अवॉइड द आयरन फिलिंग्स गेटिंग डायरेक्टली अटैच टू इट, कि डायरेक्ट अटैच ना हो जाए. देन पुट द मैग्नेट अंडर द शीट ऑफ द पेपर, वही जैसे मैंने शीट के नीचे लगा दिया. ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द बार मैग्नेट एंड मार्क विच एंड इज़ नॉर्थ एंड विच इज़ साउथ. उसके बाद आपने ये लिख देना कि दिस इज़ द नॉर्थ एंड दिस इज़ द साउथ. स्प्रेड द आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली. आपने यूनिफॉर्मली उसको जैसे मैंने किया था उसी तरह आपने उसको पेपर के ऊपर कर देना. फिर टैप द पेपर जेंटली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का थपथपाना है. ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड केयरफुली एंड ड्रॉ इट ऑन पेपर. अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने ऑब्जर्व करना है और फिर एक पेपर के ऊपर आपने उसे ड्रॉ कर देना है. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इट इज़ अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म. अब अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि हमारे अर्थ जो है उसकी जो मैग्नेटिज्म है और बिसाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जस्ट लाइक मैग्नेट, हमारी अर्थ जो ऐसे बिहेव करती है जस्ट लाइक अ मैग्नेट, एक ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा जाइंट मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट. आवर अर्थ इज़ लाइक अ जाइंट मैग्नेट सराउंडेड बाय अ ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड. उसकी बहुत इर्द गिर्द अगर आप देखें कि हम ये कहेंगे, हम ये सोचें कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत बड़ी है. ठीक है ना, छोटी नहीं है. द रीजन नियर द जोग्राफिक नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल एक्ट लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ बार मैग्नेट हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स एट इट्स एंड. और इसके अलावा जो अर्थ के एक्चुअल जोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वही उसके मैग्नेट के, अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं. समझ आ रही है बात. और उनके पोल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा है. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज़ आल्सो इनविजिबल, नज़र नहीं आती. बट वी कैन फाइंड द एविडेंस बाय सस्पेंडिंग अ बार मैग्नेट इन द एयर. द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडिंग मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टू द
अर्थ नॉर्थ पोल, अ कंपास वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। अच्छा बेटा, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी अर्थ जो क्या है उसके पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो मैग्नेटिज्म जो उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास, और वो मैग्नेट के तौर पे ह्यूज मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने बताया कि जी आप एक सस्पेंड कर लें, एक धागा लटका के एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रख लें और फिर देखें कि वो किस पोजीशन पे जो है वो जा रहा है, किस पोजीशन पे जो है वो फ्रीली जो है वो एट रेस्ट आ गया, रुक गया है। जब वो रुकेगा तो उसको आप देखें तो आप देखेंगे कि जो अर्थ का नॉर्थ है उधर ही इसका भी नॉर्थ होगा, हमारे मैग्नेट का नॉर्थ भी होगा जो आपने लटकाया हुआ है और मैग्नेट, और उसका साउथ भी जो है वो अर्थ के साउथ की तरफ होगा। हम इसको प्रैक्टिकली अचीव करते हैं, हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि वेदर दिस इज़ हैपन्स और नॉट। तो दिस हैपन्स लाइक दिस के बेटे, अगर आप यहाँ पे देखो कि दिस मैग्नेट इज़ एट रेस्ट पोजीशन, रुका हुआ है, हमने इसको देखा, हमें ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है हमारा, हमने सिर्फ एक ऊपर एक गिरा बांध के लटका दिया है। तो वी आर नॉट एट स्कूल, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग माई विंडो फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, तो आपने देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने उसको एट रेस्ट से डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, सो आफ्टर दैट जब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि नॉर्थ पोल किस साइड पे था, टुवर्ड्स मी था, मेरे कैमरे की तरफ था, और साउथ पोल विंडो की तरफ था, उसके बाद देन यू डिस्टर्ब द मैग्नेट। आप एक दफ़ा फिर पीछे से बेशक देख लें क्योंकि बात मेरी और हो रही थी, तो आप यहाँ पे देख लें, ये मैंने अभी प्रीवियस बैक कर दिया है। ठीक है, कि नॉर्थ मेरी तरफ था और साउथ जो है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जर्व करना, साउथ जो था टुवर्ड्स विंडो था, फिर उसके बाद मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, और अब ये मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, अभी ये पेंडुलम मूवमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तो वो रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उसके बाद आप देखें अब पेंडुलम मूवमेंट पे आ गया, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे अब ये मूव करने लग जाएगा, और ये बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड पे लेके जाऊंगी। इसकी रीज़न ये है कि ये तकरीबन इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स फॉर गेटिंग रेस्ट। तो इसके लिए टू बी एट रेस्ट, तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा मुझे फास्ट फॉरवर्ड पे लेके जाना चाह रही हूँ चीज़ें। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अब ये देखो ये इसकी मूवमेंट जो है वो स्लो एंड स्लो होती जा रही है, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन, नाउ इट ऑलमोस्ट एट रेस्ट पोजीशन, now it almost at rest position, and here you can see the north position and the south position is as same as in the beginning, बिल्कुल जैसे शुरू में था रेस्ट करते हुए कि नॉर्थ जो था नॉर्थ की तरफ था अर्थ के, और साउथ जो था वो साउथ की तरफ था अर्थ के, बिल्कुल उसी पोजीशन पे दोबारा आ गया है ना, दोबारा से नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ साउथ हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ जो है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और यहाँ पे इसकी मैग्नेटिज्म के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है जब भी कोई हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखते हैं। जब आप एक लटका के मैग्नेट को रखते हो तो वो किसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वो अर्थ की मैग्नेटिज्म के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उसके अंडर आ जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स कहाँ अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्थ को तो साउथ की तरफ होना चाहिए था और साउथ को नॉर्थ की तरफ होना चाहिए था, ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में। तो बेटे एक्चुअली साइंटिस्ट ने इन द बिगिनिंग साइंटिस्ट डिड नॉट नो अबाउट दिस थिंग कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो उन्होंने क्या किया, जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ गया उन्होंने मैग्नेट को भी नॉर्थ ही लेबल कर दिया। ठीक है, मैग्नेट के उस पोल को भी नॉर्थ ही लेबल कर दिया, और जो साउथ की तरफ गया तो उन्होंने उसको साउथ ही लेबल कर दिया। अब इसमें वो चेंजेस नहीं ला रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ये कह देते हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दिस इज नॉर्थ सीकिंग पोल ऑफ अर्थ एंड दिस पोल ऑफ द मैग्नेट इज द साउथ सीकिंग पोल ऑफ अर्थ। यानी ये नॉर्थ जो पोल है मैग्नेट का, ये अर्थ के नॉर्थ पोल को सीक कर रहा है, और साउथ पोल जो है वो अर्थ के साउथ पीक पोल को सीक कर रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात, यानी नॉर्थ पोल जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल है, एंड साउथ पोल जो है वो टुवर्ड्स साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल जो है और जो नॉर्थ पोल जो है वो दैट इज़ शोइंग that is showing that it is north seeking pole of the earth, and south pole is showing of the magnet is showing that is south seeking pole of the earth. And beta again that what we explore from this activity, we explore that our earth is a huge magnet. Our earth is a huge magnet, and this magnet has north and south pole and a very huge region of magnetic field. ठीक है, बहुत बड़ा उसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड का है, एंड वी आल्सो सी दैट के जोग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ
geographic poles of the earth, that the north and south poles are showing the north and south pole of the earth magnet also. The magnet of the earth has the same poles, उसके भी वही पोल्स हैं, ठीक है। और उन्होंने जो बात अगली की थी कि वो कंपस के बारे में, मैग्नेटिक कंपस के बारे में। लेट्स सी दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, magnetic compass. So magnetic compass is our next topic. A magnetic compass has freely suspended tiny magnet. Its one end always point to the north pole and help us to know the other direction, that is east, west and south. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा बॉक्स है, इट इज़ अ बॉक्स हैविंग इन विच वी मेंशन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ, वेस्ट है, ईस्ट है, north and south, all the directions are mentioned there in this box, and it has pivot in the center, आप देख सकते हो, and where the magnetic needle is attached. अब यहाँ पे उसको लगा दिया गया magnetic needle को। magnetic needle क्या होगी? made up of magnet, made up of magnet, because it has the ability to attract the magnetic things towards itself, ठीक है। तो it also has the ability to deviate or deflect towards the north pole of the earth. तो इसकी ये भी तो एबिलिटी है ना कि अर्थ के नॉर्थ की तरफ ये डिफ्लेक्ट कर जाती है या डिविएट कर जाती है या उसकी तरफ झुक जाती है, ठीक है, उसकी तरफ घूम जाती है, मूव कर जाती है उसकी तरफ। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये देखें अगेन, जो नॉर्थ पोल की तरफ ये नीडल जो लगी हुई है, इसको रेड शो किया गया, क्योंकि रेड इज़ द सिंबल टू शो कि दैट दिस इज़ नॉर्थ पोल। अगर हमें रेड कलर भी नज़र आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा दिस इज़ नॉर्थ। और क्यों ऐसा है मैं इसका भी आपको यूजेज अभी बताऊंगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी क्या वजह है। इफ़ यू प्लेस अ कंपस नियर अ मैग्नेट, द नीडल विल रिस्पॉन्ड द पुल ऑफ द मैग्नेट rather than the earth magnetic field. Therefore the compass should not be close to the magnet while determining the direction. एक बात इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि जब आप डायरेक्शन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलर्स हो गए, नेविगेटर्स हो गए, एरोप्लेन जब ये चल रहे होते हैं, दे आर यूजिंग दिस, एंड शिप में आप देखते होंगे, तो ये जो लोग हैं ये यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपस ताकि वो रास्ता भूलें ना। और वो अपने, अगर उन्होंने वेस्ट में भी जाना तो इवन दो दे फाइंड वेयर इज़ द नॉर्थ, और उसके बाद आप वो अपनी डायरेक्शन वेस्ट और ईस्ट को डिटरमिन करके जिस साइड पर उन्होंने, जिस डायरेक्शन में भी उन्होंने जाना होता है वो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर हम इसको देखें प्रैक्टिकली, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका, ये देखें ये आपकी मैग्नेटिक कंपस है, ठीक है। ये दिस वन इज़ द नॉर्थ पोल, दिस वन इज़ द साउथ पोल। ये देखें नॉर्थ जो मैग्नेटिक आपकी नीडल नज़र आ रही है आपको, इसको उन्होंने रेड कलर से शो किया है, ठीक है, रेड कलर से शो किया है। और अगर मैं इस पोजीशन चेंज करती जाऊंगी तो आप देखेंगे कि जो है मैं थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा, ये देखें कि इसका ये जो नीडल है हमारी, ये जो है इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। अब जो ही नीडल ने पोजीशन चेंज की तो फिर मुझे क्या करना होता है, फिर मुझे इस नॉर्थ को, ये जो रेड वाला नॉर्थ नीचे लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये तो वहीं रहता है ना जो मेरे हाथ में था, सिर्फ नीडल जो है वो टूवर्ड्स जो है मूव कर जाएगी या घूम जाएगी, रोटेट कर जाएगी या उसकी तरफ, नॉर्थ पोजीशन की तरफ। जो ही मैं मुड़ी हूँ ना दूसरी तरफ, तो जो मेरी नॉर्थ जो थी वो मेरी बैक पे चलेगी, मेरी बैक पे चलेगी, नीडल मेरी बैक पे आ गई, ठीक है, नीडल मेरी बैक पे आ गई। तो अब ये नॉर्थ तो यहीं पे लिखा हुआ था क्योंकि मैं पहले इस पोजीशन पे थी, फिर मैंने क्या, अब ये देखें अगेन, आप देखें फ़ौरन नीडल जो है वो, जो ही मैंने पोजीशन चेंज की नीडल चेंज होगी, नीडल की पोजीशन ये देखिए बेटा चेंज होगी, लेकिन जहाँ पे नॉर्थ था वो तो वही है। तो अब मैंने कोइंसाइड करना होगा, मिलाऊंगी मैं इस नॉर्थ को इस नॉर्थ के साथ, ताकि फिर मैं अपनी पोजीशन को डिटरमिन कर सकूँ। थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम लगेगा कोइंसाइड करने के लिए, ये देखें। तो मैं इसीलिए मैं जो हूँ मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब तक ये कोइंसाइड नहीं करूँगी मुझे फिर नहीं पता चलेगा कि मेरा ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है और मेरा जो है साउथ कहाँ है। क्योंकि अगर मैंने जिस भी पोजीशन पे जाना है मुझे पहले उसके लिए करने के लिए मुझे इसको सेटिंग करनी होगी। अब ये देखें ये सेट हो चुका है। तो जिधर डिविएट हुई थी मेरी, आपने देखा था नीडल इधर डिविएट हुई थी, तो नॉर्थ को मैंने उसी साइड के साथ कोइंसाइड कर दिया। अब मुझे पता है मेरा साउथ जो है इसके जस्ट ऑपोजिट टू द नॉर्थ है, ईस्ट मेरे बिल्कुल सामने है, वेस्ट मेरी बैक पे है, ठीक है बेटे। तो अब इस हिसाब से मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। अगर मैंने नमाज़ पढ़नी है तो मुझे वेस्ट साइड पे किबला रुख, यानी अपनी बैक की तरफ नमाज़ बिछा के मैंने नमाज़ पढ़नी होगी। इस बात को बड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे इश्क में भी बड़ी काम आती है कि किबला रुख किस साइड पे है। तो वेस्ट साइड पे हम जब जहाँ पे भी होते हैं, सैर वगैरह करने गए हैं किसी जगह, ऐसी जगह जो हमारे लिए अननोन है, वहाँ पे हम मैग्नेटिक कंपस ले जाएंगे, हम अपना किबला डायरेक्शन देख के हम इससे फाइंड आउट करके हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इट इज़ अबाउट
टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैंने आपको बताया था कि आज इस लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे इट इज़ अप टू परमानेंट मैग्नेट्स, क्योंकि हमारे पास जो 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं, वन इज़ नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट, अदर वन इज़ नोन एज परमानेंट मैग्नेट। लेकिन क्योंकि टाइम का एक हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है स्लॉट, तो हमें उसी टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो आई विल मैनेज इट इंशाल्लाह द सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें आप थोड़ा सा देखें, परमानेंट मैग्नेट्स हम स्टडी करेंगे। परमानेंट मैग्नेट्स अगर आपको याद हो कि इनिशियली इन द फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको परमानेंट मैग्नेट्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड ये कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये सब चीज़ें मैंने, और रिपल्शन भी मैंने शो की थी आपको। तो ये मैंने आपको परमानेंट मैग्नेट्स के थ्रू की थी। और हमारे पास 3 किस्म के परमानेंट मैग्नेट्स थे जो मेरे पास अभी अवेलेबल थे। वन इज़ द यू शेप, अदर वन इज़ द बार शेप एंड अदर वन इज़ द रिंग शेप। लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली हॉर्सू शेप नहीं था। हॉर्सू शेप में और यू शेप में ये डिफरेंस होता है कि इसकी आप देखें आगे जो इसकी आर्म्स होती हैं ये नैरो होती हैं, ठीक है। इसकी जो है इसकी नैरो है, यहाँ पे ये वाइड है, यानी ये पूरा यू शेप है। और ये हॉर्स का जो शू शेप होता है ना, उसका हॉर्स का जो आगे शू लगा होता है हॉर्स के पाँव पे, ये उसी शेप का होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज हॉर्स शू शेप। तो परमानेंट मैग्नेट्स आर व्हाट दे आर। और क्या टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या हैं? तो टेम्परेरी मैग्नेट्स जो है बेटा परमानेंट नहीं होते, दैट इज़ टेम्परेरीली फॉर्म्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेटिज्म, ड्यू टू मैग्नेटिज्म ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। उनकी मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिज्म की वजह से वो बन जाते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह एक्टिविटी भी करूँगी और आपको शो भी कर दूँगी। अभी हम जो है फोकस करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स पे। तो परमानेंट्स का मतलब हमेशा जो पक्के रहते हैं, ये नहीं कि भाई जब तक कि आप बहुत ज़्यादा उसके डैमेज ना करें, इसको तोड़ फोड़ ना दें, इसको दीवारों के साथ ना मारें या उसको बहुत हीट अप ना कर दें, ये अपनी मैग्नेटिज्म मेंटेन रखते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इनकी मैग्नेटिज्म जो है वो टेम्परेरी नहीं होती। इनकी फोर्स जो है वो पावर जो है चीज़ों को पुल करने की या पुश करने की, वो इनकी जो है परमानेंट होती है, ठीक है ना। तो दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल दैट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। नीडल ऑफ जैसे हमने बनाई थी नीडल ऑफ कंपास का, मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ यूज फॉर बाय और फाउंड बाय परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट में ये है कि इसमें उन्होंने बता दिया कि दे हैव डिफरेंट शेप्स, यू शेप, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट एंड हॉर्सशू शेप। इसमें बेटे एक्चुअली 2 किस्म, क्योंकि अब पहले तो होता था कि लोड स्टोन को ही रियल पुराने ज़माने में लोड स्टोन एक जो होता था दैट इज़ एक्चुअली द स्टोन दैट इज़ यूज़ फॉर द मैग्नेट हैविंग द मैग्नेटिक एबिलिटी, उसको हम यूज़ करते थे। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है जब से हमारे पास मशीन्स आ गई हैं, डिवाइसेस आ गए हैं हमारे पास डिफरेंट, वेयर वी आर यूजिंग, क्योंकि इसका ह्यूज अब ये सिर्फ सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं होता मैग्नेट। नाउ वी आर यूजिंग इट इन मैनी पर्पसेस। इन आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी मोटर है तो उसमें चल रहा है, मोटर घूम ही इसी वजह से रही है कि आपने उसमें एक मैग्नेट लगाया हुआ है। आपके स्पीकर्स बोल रहे हैं तो वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें जो है आवाज़ जो है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उसमें एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। तो उसके कॉम्बिनेशन कैसे होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो अब फिर हम अलॉयज़ यूज़ करने लग गए हैं डिफरेंट चीज़ों के, कोबाल्ट है, आयरन है, इन चीज़ों को मिक्स करके हम एक परमानेंट मैग्नेट बना लेते हैं और इसके साथ हम लोड मैग्नेट को भी लोड स्टोन को भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट मेटल्स के जो अलॉयज़ यूज़ कर लेते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट फॉर्म कर देती हैं। इन सच अ वे वी फॉर्म द परमानेंट मैग्नेट एंड दे हैव देयर मेटेलिक मैग्नेटिक फोर्स परमानेंटली। उनकी पक्की जो होती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है अनटिल एंड अनलेस हम उसे बुरी तरह डैमेज ना कर दें। जैसे मैंने आपको बताया ज़ोर से फेंकेंगे तभी भी डैमेज होगा, हीटअप कर देंगे, बहुत गर्म कर देंगे आग के अंदर तो तब भी वो अपने मैग्नेटिक फोर्स लॉस कर जाएगा। और अदरवाइज़ ये है कि आप उसको आप सालों रखें, आप देखोगे आपके पास कहीं आप टीवी पे आवाज़ें सुन रहे हैं, टेलीफोन सुन रहे हैं, सालों आपके पास पड़ा हुआ टीवी 4-4 5-5 साल हो गए हैं, तो उसमें जो मैग्नेट लगा है वो यूज़ हो रहा है, काम कर रहा है। तो ठीक है, तो ये इसका जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं दे मेंटेन और अटेन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा आवर फर्स्ट लेक्चर एंड होप सो कि यू एंजॉयड योर लेक्चर एंड योर लेसन एंड you had and you understand it well. And what I'm going to expect from you is I'm going to give you some tasks to achieve, and what they are number 1, read chapter thoroughly. आपने जहाँ तक अब हमने किया है अप टू परमानेंट मैग्नेट्स तक, उसको बहुत ईच एंड एवरी वर्ड आप
उसको थॉरली पढ़ें। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे मिस हो गया है जैसे, लेकिन मैंने अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश की है, ट्राई माई बेस्ट कि ऐसा कोई भी न्यू वर्ड जो था वो उसको मैं आपको एक्सप्लेन, जैसे कॉन्सेंट्रिक लाइन लिखा हुआ था तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रिक लाइन। तो इस तरह की बातें, टैप करना, दिस एंड दैट, वो जो भी था मैंने आपको बताया। मेटालिक सब्सटेंसेस के बारे में बताया। और इसके बाद इवन दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क, do in this, even in the comments of this video or in your class group. Do related activities if possible and record your own observation. कोशिश करें कि आपको ये चीज़ें मिल जाएं, और क्योंकि ये बाज़ार में अब ईज़िली अवेलेबल हैं, बुक शॉप पे अवेलेबल है, आप यू कैन परचेज़ दो। 300 नहीं तो 400 रुपया। द कास्ट ऑफ द किट इज़ ऑलमोस्ट 400 और 300, ठीक है। तो आप उसको परचेज़ कर लो इफ़ इट इज़ पॉसिबल। मैं ये नहीं, जोर नहीं दे रही कि आपने करना ही करना है और आप अपने पेरेंट्स को बहुत फोर्स करें। इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू कैन बाय दैट or purchase that kit, you buy that and then you do those related activities and see or record your own observations. And then next, that is also very important, write answers of question number 1 and 2 of part B, that are long questions. One is about the experiment जो कि आपने magnetic field का experiment किया, and second is regarding earth behaving like a big magnet और huge magnet, उससे relevant है। तो ये आपके पेज 71 पे है, ठीक है। तो बेटा ये questions आपने ना सिर्फ कॉपी पे करने हैं बल्कि you learn them by heart, उसको दिल से याद करना है। और क्योंकि आपको पता है कि साथ साथ जो है लर्निंग प्रोसेस जो है उसको जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करें, दैट वोंट बिकम द पार्ट ऑफ योर लर्निंग। तो उसके लिए फिर आपको साथ साथ याद भी करना होता है, ठीक है। तो वो भी करें, साथ साथ याद भी करें, प्रैक्टिस भी करें, प्रैक्टिकली अप्रोच भी रखें उसको हर लिहाज से, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना आप उसको प्रैक्टिकली करते हो उतना आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा गेन करते हो सकता है मैं कुछ स्किप कर गई हूँ और आप मुझे बाद में बता रहे हो कि मैम ये चीज़ भी थी, ठीक है। तो आई थिंक कि दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर। टिल नेक्स्ट लेक्चर बेटा, फ्रॉम माई साइड, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।